All eyes will now be on Rhea Chakrabarti. Rhea Chakrabarti is all set to face the Narcotics Bureau tomorrow. That is the big breaking news coming in. Information has now been confirmed that after, remember, her younger brother Shouvik Chakrabarti is in custody. Former house manager of Sushant Singh Rajput, Samuel Miranda, is also now in custody, and Rhea Chakrabarti is now going to face summons from the Narcotics Bureau. Already the CBI, where she is an accused, prime accused in the FIR, also the Enforcement Directorate, have been investigating different angles with regard to Rhea. But the drug angle has taken a very strong dimension now, and Rhea Chakrabarti will be facing the Narcotics Bureau. Right, so that's the big news we're going to stay on, because there was speculation she could be called in tomorrow as well, today evening, but confirmation now has come in that the young actor is now going to be called by the Narcotics Bureau tomorrow. Remember, she has categorically told India Today in her defense that she has never consumed drugs, that it was Sushant Singh Rajput who did take marijuana sometimes, and that he had some mental health concerns, but she is ready for any test, anytime, and has never consumed drugs. But why is this Narcotics Bureau questioning could prove serious trouble is if there was more than consumption, there was possession and sale of drugs by her as well. Vidya is tracking all the latest on this. Vidya, so let's say if the clock is ticking for Rhea Chakrabarti, it's not as much abetment to suicide. It is now about this dreaded drug angle, and if she was involved in more than consumption. Well, it certainly is. In fact, what the Narcotic Control Bureau is very clearly saying that it is not about consumption at all. What is that they are looking at is a larger syndicate that was supplying drugs to the Bollywood, and which is the reason Rhea is just one part of it. She was buying for whom, to who, given it to whom. That's all something that they really need to know, which is the reason why even Shouvik Chakrabarti and Samuel Miranda's custody was very needful for them. That is what they have taken. On the other hand, Zahid and the other guys, advocates, have filed for bail application saying that this entire custody given to the Narcotic Control Bureau is illegal. But at this moment, NCB knows very clearly that whatever it may be, they need time to investigate. They need time to question these people, and that is the reason why this entire NCB, that entire police custody that they have till 9th for the next 4 days. I request you to stay on with me, because I'm also now joined by Arvind Ojha. Arvind, क्या टाइम अभी स्पेसिफाई हुआ है कि कितने बजे बुलाया जाएगा रिया चक्रवर्ती को? और क्योंकि क्वेश्चनर है आपके पास, क्या पूछ सकती है एग्जैक्टली नारकोटिक्स ब्यूरो रिया चक्रवर्ती से कल? जी देखिए, मैं आपको बताऊं पूजा, इंडिया टुडे ने सबसे पहले एक व्हाट्सएप चैट का खुलासा किया था 15 मार्च 2020 का, जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती से बातचीत कर रही थी। रिया चक्रवर्ती उसमें कहती दिखाई दे रही थी कि वो दिन में 4 सिगरेट पीता है। वो सिगरेट नॉर्मल नहीं थी, ड्रग्स वाली थी। शोभिक से कह रही थी कि वो ड्रग्स उस चीज का अरेंज करे। शोभिक चक्रवर्ती उसमें बकायदा ये प्रॉमिस करते हुए दिखाई दे रहे थे कि वो अरेंज कर देंगे कम से कम 5 ग्राम का। इस तरह के कई सवाल होंगे, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर जरूर दिखा दूं। ये जो पूरी बिल्डिंग है, बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती कल यहाँ पर मौजूद हो, जो हमें एनसीबी के टॉप ऑफिशियल ने बताया है। अब से कुछ देर बाद रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजेगी एनसीबी की टीम, और इसी दफ्तर में जहां इस वक्त शोभिक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, सैमुअल मिरांडा जो सुशांत के स्टाफ थे, दीपेश सावंत जो सुशांत के स्टाफ थे, इन तीनों से, उसके अलावा जो ड्रग पैडलर है जो इस पूरे सर्किल को ड्रग सप्लाई करते थे, ये तमाम लोग एनसीबी के इसी दफ्तर में है। और कल जिस तरह से हमें जानकारी मिली है, रिया चक्रवर्ती भी इसी दफ्तर में होंगी, और बहुत मुमकिन है कि कल उन पर शिकंजा कस सकता है, क्योंकि कई एविडेंस एनसीबी के पास है। सवालों की फेहरिस्त भी तैयार की है एनसीबी ने, जो हमारे पास भी है। क्योंकि और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है क्वेश्चनर के मामले में। विल टेक अ लुक एट दिस ब्रेकिंग न्यूज दैट्स कमिंग इन, that there is a questionnaire that has been prepared by the Narcotics Bureau. India Today has access. Some of the questions that could be asked are: WhatsApp chats prove that you were not just buying drugs but also consuming. For whom did you buy those drugs? Were you administering it to somebody? Importantly, how did you pay for those drugs, which were clearly illegal, illicit in nature? For whom did you demand a bud in your March 15th drug chat with Shouvik?
And in case the late actor Sushant Singh Rajput was consuming, why did you decide not to stop him? But the biggest question could also be asked to Rhea Chakrabarti. Were you selling drugs as well? Arvind Ojha tracking all the latest on that. Arvind, आप कंज्यूम क्यों कर रही थी? आपने सुशांत को मना क्यों नहीं किया? लेकिन उससे ज्यादा क्या आप बेच भी रही थी ड्रग्स? तो अबेटमेंट और सुसाइड का तो एक अलग केस चल रहा है, लेकिन ये जो ड्रग्स हैं उसका कंजम्पशन का ये तो सीरियस ट्रबल हो सकता है, क्योंकि इस पे एविडेंस है, इस पे अरेस्ट हो चुके हैं। देखिए पूजा, आपको समझना होगा 3 एजेंसी इस पे काम कर रही हैं, सीबीआई, ईडी और एनसीबी। तीनों अलग अलग जांच कर रही हैं, लेकिन सबका मकसद एक है, सुशांत की मौत का सच जानना। और शायद ये वजह है कि जब ड्रग एंगल आया, ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कुछ व्हाट्सएप चैट दिए, एनसीबी ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन एनसीबी ने स्मार्ट मूव करते हुए न सिर्फ रिया चक्रवर्ती, शौविक को, इन सबको बुलाया नहीं, बल्कि सीधा ड्रग पैडलर को पकड़ा और उसके बाद ड्रग पैडलर के डिस्क्लोजर पर शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया। अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की तैयारी है। जो एनसीबी ने सवाल तैयार किए हैं, हमें सोर्सेस के जरिए वो सवाल मिले हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती से पूछा जाएगा कि आप शौविक चक्रवर्ती से ड्रग की मांग कर रही थी, वो ड्रग की मांग किसके लिए कर रही थी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी के सामने डिस्क्लोज किया है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीद रहे थे। यहाँ तक कि जो दीपेश सावंत था, उसने भी डिस्क्लोज किया है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीद रहे थे। लेकिन रिया से पूछा जाएगा कि ड्रग्स आप किसके लिए मंगवा रही थी, पैसे कहाँ से आ रहे थे, आपने मना किया था कि आप ड्रग्स नहीं इस्तेमाल करती थी, लेकिन हमारे पास जो एविडेंस है उसके मुताबिक आप ड्रग्स ले रही थी। सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाएगा, अगर आप सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, आप उनको ड्रग्स अपने भाई के जरिए मुहैया क्यों करवा रही थी। तो ऐसे कई सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। वो सवालों की लिस्ट भी हमारे पास है जो एनसीबी ने तैयार की है। अपनी तरफ से रिया चक्रवर्ती ने ये कहा, आई हैव नेवर कंज्यूम्ड ड्रग्स, मैंने ड्रग्स नहीं लिया, आप कभी भी टेस्ट करवा लीजिए। तो ये नारकोटिक्स ब्यूरो को कल भी कहेंगे। आप कह रहे हैं कनेक्शन आएगा सुशांत सिंह राजपूत पे ही, कि क्या उनको दिए गए थे ड्रग्स या नहीं। देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। रिया चक्रवर्ती को काफी वक्त मिला है, अगर मीडिया में आने से पहले उनको काफी वक्त मिला है। उन्होंने केस को समझा है अपने वकील के साथ, क्योंकि अब ये देखिए, अब इसमें ये अदालती लड़ाई होगी, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगी अगर किसी के सामने या मीडिया के सामने। हर इंसान बचना चाहता है, लेकिन वही मैं बता रहा हूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब उनके पास व्हाट्सएप चैट आया तो उन्होंने सीधा सम्मन नहीं किया, क्योंकि अगर सम्मन करते तो सीधा इनकार करते, मेडिकल टेस्ट में कुछ आता नहीं लंबे वक्त के बाद। इसलिए ड्रग पैडलर जो इस सर्किल को ड्रग्स सप्लाई करते थे उनको पकड़ा, उनके डिस्क्लोजर पर सारी ये कवायद चल रही है। All right, so even if indirectly this is going to link to the death case of Sushant Singh Rajput, and of course just few hours to go before Rhea Chakrabarti will be at the Narcotics Bureau, we'll be tracking the latest. Thank you so much, Arvind Ojha, with all the latest. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.